मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द टॉपिक इज बफर सॉल्यूशन, देन द टाइप्स ऑफ द बफर, then what is the buffer action, what are the properties of the buffer, and lastly we come on the applications of the buffer. So the first we are taking what is the exact definition of the buffer solution. Buffer solution किसको कहा जाता है? आप लोगों को पता है कि जब मार्केट में हम लोग कुछ चीजें जैम्स हो गए, जेली हो गया, ऐसे कुछ जो खरीदते हैं वो सालों साल पैक्ड रहते हैं, फिर भी वो खराब नहीं होते। आपने देखा है जनरली दैट द वन केमिकल दैट इज नोन एज द सोडियम बेंजोएट दैट इज टू बी यूज्ड ओवर हियर। अब ये सोडियम बेंजोएट का क्या मतलब होता है भाई? ये जो केमिकल होता है, ये केमिकल्स उसके अंदर में जो डाला जाता है सोडियम बेंजोएट, दैट वर्क्स एज वन ऑफ द से दैट प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव का मतलब क्या होगा? But these are the chemicals which resist the pH value of the particular substance. अगर वो कोई जैम, जेली या तो कोई भी चीज अगर होती है तो इस तरीके से केमिकल्स ऐड करने के बाद that it does not changes the pH. बराबर है। अगर हम लोग माने पिकल में जैसे कि केमिकल्स की अगर हम लोग अगर बात करें तो वहां पे सोडियम बेंजोएट वन ऑफ द केमिकल दैट इज टू बी यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेटिव इन द वेरियस दैट इज द सब्सटेंसेस। पिकल की अगर बात करें तो उसके अंदर में ऑयल होता है, उसके अंदर में सोडियम क्लोराइड या तो जो हम लोग सॉल्ट जो बोलते हैं वो डाला जाता है। अगर मैं सोडियम बेंजोएट या तो बफर सॉल्यूशन की अगर बात करूं तो दैट द बफर सॉल्यूशंस आर दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच रेजिस्ट द पीएच वैल्यू। जहां पे पीएच वैल्यू रेजिस्ट होती है उसका मतलब ये होगा कि वो सब्सटेंस खराब नहीं होगा। वो सब्सटेंस ना तो अल्कलाइन होगा ना तो एसिडिक होगा। दैट सब्सटेंस इज नोन एज दैट इज द बफर सॉल्यूशन। That solution is known as the buffer solution. Therefore, the solution which raises the pH, value, which raises the pH, यानी वो खराब ही नहीं होगा। अगर ये solution डाला है, अगर वहां पे बफर है, इसका मतलब ही होगा कि that works as one of the preservative, and that works for a long day. Getting this? समझ में आ रही है? Now there are the two types of the buffer solution. One is known as the acidic buffer and the another that is known as the basic buffer. जो acidic buffer होता है that maintains the acidic pH, and जो basic buffer होता है that maintains that is the basic pH. In a previous video that we have been discussed, that when the value that starts from the 7 to the 14, 7 onward, that shows the basic nature, and if the value that is less than the 7, that becomes the acid. They show the acidic behavior. So when we are talking about the two types of the buffer, one is the acidic buffer which maintains the acidic pH, while the another is the basic buffer which maintains the basic pH. Now what is the acidic buffer? How it works? See, the very simple concept is there. अगर हम लोग यहाँ पे acidic buffer की अगर बात करें तो see that this is the solution. This is the solution that containing the weak acid. What is the buffer? It is the solution of the weak acid and it's a salt of the strong base. ये जो acidic buffer solution होगा, it is the mixture of the weak acid and it's a salt of the strong base. For example के तहत अगर लिखा दिया जाए, so that this is the CH3COOH, it is a mixture of the acetic acid and the sodium acetate, that these are solutions that become the acidic buffer.
So itself, that is a CH3COH, itself it is a weak acid, and the CH3CONA, it is a one type of the salt with the strong base that it derived from the sodium hydroxide. So we are getting the sodium acetate over here. Clear? समझ में आ रही है? So that the mixture of the acetic acid along with the sodium acetate, it is known as the acidic buffer which maintains the acidic pH. Now see that is the one equation is there. That see that is the pH की बात अगर होती है, तो that there is a one relation that is the pH is equals to pKa plus a log of concentration of the salt upon concentration of acid. Where this is the pKa that is known as the minus log. It is a negative logarithm of the dissociation constant for the acid with base tail. That the very similar manner that we are getting the another type of the buffer, that is the basic buffer. Say that this is the basic buffer where it is a mixture of the weak base and it's a salt with a strong acid. See, weak base का मतलब ammonium hydroxide. One of the example that we are taking, it is a weak base is the ammonium hydroxide and it's a salt with the strong acid NH4Cl. अगर strong acid अगर होता है तो let's see that this is the salt that is derived from the HCl. Hydrochloric acid, and that's why this is the mixture of the ammonium hydroxide along with the ammonium chloride that gives that is the basic buffer which maintains the basic pH. Again, that when we take here that is the formula that is the POH, say that this is the pH and this is the POH. POH that is equals to pKb plus log of concentration of the salt upon concentration of the base. यहाँ पे अगर हम लोग अगर देखें तो that say that this is the conjugate base. It is the conjugate base upon a weak acid and here it is the conjugate acid upon a base. This is the very important. When these both of these equation, that the pKb का मतलब ये होगा it is the negative logarithm of the dissociation constant for the base. Negative log that this is the pKb equals to negative log of the dissociation constant of the base with base 10. But these equation, ये जो equation है, that is this both these equation, pH और POH के लिए जो equation हम लोगों ने लिखा है, that these equation that is known as the Henderson-Hasselbalch equation. It's a very important. See, ये जो दो equation है, this equation number 1 and this equation number 2, both these equations they are known as the Henderson-Hasselbalch equation. Clear? समझ में आ रही है? So that the very simple concept is that what is the exact buffer solution? Buffer solution किसको कहा जाता है? तो ये simple definition where we have discussed that the two different types of the buffer. One is the acidic buffer and the another is the basic buffer. Acidic buffer, it is a mixture of the weak acid and it's a salt with the strong base. And the another is the basic buffer. It is a mixture of the weak base and it's a salt with the strong acid. So these are the examples. आप लोगों को examples पता होना चाहिए. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को ये सारी चीजों को याद रखना है, आपको समझना पड़ेगा, बराबर एग्जाम्पल के साथ समझना पड़ेगा. क्यों? तो हम लोगों को जब एक्शंस की बात होती है, व्हाट इज द बफर एक्शन, जब बफर एक्शन जब लिखते हैं तो हम लोगों को ये सारे केमिकल इक्वेशंस या तो रिएक्शंस याद करना है. क्लियर? गेटिंग दिस? नाउ वी आर कमिंग ऑन द अनदर वन, दैट इज द बफर एक्शन. See what is the buffer action? अब ये बफर सॉल्यूशन की तो बात होती है कि that maintains the pH. ओके भाई, अगर वो pH मेंटेन करता है, it reduces the pH, इसका मतलब अगर हम लोगों ने उसके अंदर में एसिड को डाल दिया, उसके अंदर में हमने बेस अगर एसिड को डाला तो वो एसिडिक होना चाहिए, अगर उसके अंदर में हमने बेस अगर डाला तो वो बेसिक होना चाहिए. लेकिन एसिड और बेस डालने के बावजूद भी उसका pH ये चेंज नहीं होता. दैट इज बफर. That is buffer solution. या तो उसको when we keep for the long time, they'll say that is the sometimes that some substances that change their pH, लेकिन ऐसा भी नहीं होता. अगर वो buffer solution उसके अंदर में डाला है तो pH never changes. pH remains the constant. pH as it is होता है. That is the buffer. अब उसकी एक्शन कैसे होती है? अगर मैंने वहां पे
बफर सॉल्यूशन डालने के बाद अगर मैंने उसमें एसिड या तो बेस डाला तो यह चेंज क्यों नहीं होता? व्हाई? वहां पे एसिडिक कैरेक्टर या तो बेसिक कैरेक्टर क्यों नहीं इंक्रीज होते हैं? वहां पे पीएच चेंज क्यों नहीं होती? दैट कंसेप्ट इज नोन एज द बफर एक्शन। क्लियर? उसी को हम लोग बफर एक्शन बोलते हैं। चलो हम लोग देखें कि बफर एक्शन में क्या होता है। If I consider here that is the acidic buffer, मैंने acidic buffer को consider किया। See, this is the mixture of the weak acid along with the its a salt with a strong base. बराबर है? So it is a mixture of the CH3 acetic acid and the sodium acetate. अगर वो एसिडिक एसिड अगर होता है तो पार्शियल डिसोसिएशन होगा, इट डज नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली। बट एज इट इज अ सॉल्ट और CH3COONA, सोडियम एसिटेट इज अ सॉल्ट, अगर वो सॉल्ट अगर होता है तो दैट गेट्स कंप्लीटली डिसोसिएट, 100% डिसोसिएशन इज देयर, सो इट गेट्स डिसोसिएटेड इनटू द CH3COO plus Na. Say that this molecule sodium acetate that gets decomposed or the dissociated into the acetate ion and it's that sodium ion. Concentration of the CH3COA, that is the undissociated molecule that becomes the high. Acetate ion, acetate that sodium acetate का तो dissociation हो चुका है, बराबर। बट उसके अंदर में जो एसिडिक एसिड है CH3COH, we'll see that whatever the concentration of this CH3COH which is undissociated, उसका अभी तक dissociation, that molecule is undissociated, with the concentration that becomes the high, बराबर है। अभी ये हो गया बफर, ये हालांकि that this is not the condition, concentration of the CH3COH that becomes the undissociated, उसका concentration ज्यादा है, और सोडियम एसिटेट का डिसोसिएशन हुआ है सोडियम आयन में और एसिटेट आयन में। क्लियर? अब यह होने के बाद हम उसमें एसिड डालते हैं। व्हेन द एसिड इज एडेड, चलो कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग डालें। अगर एसिड डाले तो एसिड का मतलब होगा कि दैट गिव्स दैट इज द हाइड्रोजन आयन। वहां पे कॉन्सेंट्रेशन, जैसे एसिड डाला जाएगा तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। As soon as the acid that is to be added, the concentration of the hydrogen ion increases, then these hydrogen ions that will be consumed by this CH3COO acetate ion being a negative, CH3CO negative होने के कारण क्या करेगा? वो हाइड्रोजन आयन को कंज्यूम करेगा। Immediately when it consumes the hydrogen ion, that will be converted into say acetic acid again. बराबर है? जैसे हमने एसिड डाला, एसिड डालने के बाद वहां पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा। विद द हाइड्रोजन आयन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, दैट दिस हाइड्रोजन आयन दैट विल बी एक्सेप्टेड और दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय द एसिटेट आयन एंड इमीडिएटली दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एसिटिक एसिड। ये पहली एक्शन हो रही है, बराबर है? हमने एसिड डाला, एसिड डालने के बाद बफर क्या करेगा? जहां पे एसिटेट आयन है वो सारे के सारे एसिटेट आयन हाइड्रोजन आयन को क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे एंड इमीडिएटली दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एसिटिक एसिड। करेक्ट? ये हो गया पहला चीज एसिड डालने के बाद। क्लियर? एसिड हमने डाला, एसिड डालने के बाद जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं वो हाइड्रोजन आयन कौन कंज्यूम करता है? एसिटेट आयन। एसिटेट आयन कंज्यूम करने के बाद वहां पे इमीडिएटली उसका कन्वर्जन किसमें होता है? CH3COH में। यानी जितने भी हाइड्रोजन आयंस हम लोग ऐड करते जाएंगे, यानी एसिडिक कैरेक्टर हम लोग बढ़ाएंगे, लेकिन वो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ने नहीं देगा। क्यों? तो हाइड्रोजन आयन को कंज्यूम कौन कर रहा है? CH3CO। गेट इन दिस? यानी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन वहां पे बढ़ेगा ही नहीं, जैसे बढ़ेगा वैसे वो एक्सेप्ट करेगा कौन? एसिटेट आयन। क्लियर? ऑल दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय द एसिटेट and immediately that will be converted into this. ये हो गया एसिड का रिएक्शन। अब हम लोग बात करेंगे बेस के लिए। चलो हम लोग बेस ऐड करेंगे। चलो when the base is added, then what will happen? अगर मैं बेस ऐड करता हूं इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन होना चाहिए, OH नेगेटिव होना चाहिए। That these are OH negative ion that will be neutralized by this acid,
जो कि हम लोगों ने पहले ही बोला कि दैट एसिडिक एसिड इज ऑलरेडी अनडिसोसिएटेड और उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है। तो जैसे ही हमने बेस डाला, उसके जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन को न्यूट्रलाइज कौन करेगा? एसिड। बिकॉज दिस इज एसिड तो पहले से है उसके अंदर में CH3COH। जैसे हमने बेस डाला उसका मतलब ये होगा कि दैट द हाइड्रोक्साइड आयन उसके बेस के अंदर में जो होते हैं दैट ऑल दैट OH नेगेटिव दैट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस एसिटिक एसिड। करेक्ट? और जैसे ये न्यूट्रलाइज होता है इमीडिएटली दैट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू से दैट इज द CH3COO नेगेटिव प्लस H2O एंड इमीडिएटली आपको क्या मिलता है? CH3COO। ठीक है, समझ में आ रही है? यानी देखिए प्रोसेस कैसे हो रही है। जब हम लोग भाई एसिड डाल रहे तो जो हाइड्रोजन आयन होते हैं वो एसिटेट आयन के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, और जैसे मैं बेस डालता हूं तो वहां पे एसिटेट आयन फिर से प्रोड्यूस होते हैं। जो एसिटेट आयन प्रोड्यूस होंगे वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करेंगे, वो कंज्यूम होते जाएंगे। यानी यहां पे एसिड डालने के बाद या तो बेस डालने के बाद कोई भी रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहां पे बढ़ नहीं रहा है। यहां पे हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगा तो एसिटेट आयन उसको एक्सेप्ट करेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो इमीडिएटली दैट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द एसिटिक एसिड। बराबर है? उसके कारण द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन एज वेल एज द हाइड्रोक्साइड आयन डज नॉट चेंजेस इन दिस इवन आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड एंड द बेस। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट बफर एक्शन। उसी को हम लोग बोलते हैं बफर एक्शन। बराबर है? यानी कोई भी अगर सब्सटेंस होता है उसमें एसिड डालने के बाद एसिडिक पीएच आना चाहिए, उसमें बेस डालने के बाद बेसिक पीएच होना चाहिए। लेकिन यहां पे हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन उसका जो कॉन्सेंट्रेशन दैट डज नॉट चेंजेस एट ऑल बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन। अगर हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो इमीडिएटली एसिटेट आयन उसको कंज्यूम करते हैं। अगर हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ता है तो इमीडिएटली एसिटिक एसिड उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। एंड देयरफॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन एज वेल एज द हाइड्रोक्साइड आयन डज नॉट चेंजेस ओवर हियर। This is what the very important buffer action. Clear? Now we are coming on the next one, that is the properties of buffer. देखिए बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। pH की बात अगर करें तो that the pH does not changes, मैंने पहले ही बोला है pH does not changes by addition of acid or base, या तो उसका डाइल्यूशन करने के बाद when we dilute that solution, even though when we are diluting the pH never been changes, at the same time when it is kept for a long time then also the pH that remains the constant. बराबर है? ये प्रॉपर्टी है pH की। अगर वो सॉल्यूशन को आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक आपने वैसा ही रखा तो भी उसकी pH चेंज नहीं होगी। अगर मैंने एसिड भी डाला, बेस भी डाला तो भी pH चेंज नहीं होगी। अगर मैंने उसको डाइल्यूट भी किया तो भी pH उसकी चेंज नहीं होगी। दैट इज द वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बफर। ओके, समझ में आ रही है? एंड लास्टली वी कम ऑन द एप्लीकेशंस। से कि बफर सॉल्यूशन, ये बफर जो होता है वो कहां कहां पे इस्तेमाल होता है? बहुत सारे देखिए यहाँ पे अगर मैं बायोकेमिकल सिस्टम की अगर बात करूं, इन बायोकेमिकल सिस्टम ह्यूमन बॉडी की अगर बात अगर होती है, सी दैट ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी where the pH of these of blood that varies, say that is the 7.36 to the 7.42, यानी ह्यूमन ब्लड जो होता है that is alkaline in nature। बराबर है? वो अल्कलाइन नेचर का होता है। क्यों? तो अगर आप देखें तो उसकी रेंज कितनी है? 7.36 टू द 7.42। अगर हमारे बॉडी में कहीं पे भी पीएच चेंज, अगर ब्लड का चेंज होता है पीएच, तो सडन डेथ इज देयर। बराबर है? वो जो भी होगा, अगर इस तरीके से पीएच अगर चेंज होती है हमारे ब्लड में तो हो सकता है कि उसकी डेथ हो करके। हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है उसका पीएच मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है। दैट रेंजेस इन बिटवीन द 7.36 टू द 7.42।
So this is what the biochemical system इसको कहा जाता है, the pH of the blood that remains the alkaline. Okay, then in the agricultural purposes that these buffers are very important. अगर हम लोग देखें कि that say inside the soil that the various salts that we are going to use, where these are salts that also works as a buffer. So in agricultural purposes that these buffer solutions or the buffers are very important. Then in the industries that the various industrial processes are there, where inside these industrial processes we are using the various types of the buffer, so that the industrial uses are there, while inside the medicines also we use the buffer. बहुत सारे medicines है, यहाँ पे penicillin one of the very important is there, that is the penicillin, where in the penicillin that is the ऐसा कहा जाता है that in the preparation of the penicillin that is stabilized by the addition of the sodium citrate, where these are sodium citrate that works as a buffer. So that's a medicinal uses is also there. Buffer medicines के अंदर में भी use किया जाता है, industry के अंदर में भी that plays a very important role in the paper, then the dyes, then the ink, then paints, isn't it? And so that is the drug industries also. So these are the various applications. But the last application that is the analytical chemistry. अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम लोग एसिड बेस रेडिकल्स आइडेंटिफाई करते हैं, जब ग्रुप 3 में हम लोग जाते हैं, बराबर है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद अगर होगा तो then we use there that is the ammonium hydroxide as well as the ammonium chloride in excess quantity. We use the ammonium hydroxide and the ammonium chloride solution. Ammonium chloride और ammonium hydroxide excess में डाला जाता है. कब? जब हम लोग थर्ड ए ग्रुप का कैटायन एनालाइज करते हैं, थर्ड ए ग्रुप का कैटायन जब निकालते हैं, जब हम अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, दैट मीन्स in that analysis we must keep the pH range जो होती है around से that is the 8 to 10 pH होना चाहिए. That means the medium that should be a basic medium, और वो बेसिक मीडियम को हमको मेंटेन करने के लिए वी आर यूजिंग द अमोनियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद द अमोनियम क्लोराइड. बराबर है. अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड इज अ बेसिक बफर. इट इज अ बेसिक बफर. अगर वो बेसिक बफर होता है, इसका मतलब होगा कि दैट मेंटेन्स द बेसिक पीएच. Clear? So in the analytical chemistry also, see that the buffers that is to be used. So these are the very simple applications in the biochemical systems, then in the agricultural purposes, then in the various industries, paper industry, drug industry, then dyes and paints, then the various medicines. जहाँ पे हम लोगों ने बात की कि जो penicillin होता है, in the preparation of the penicillin, say that the sodium citrate that is to be added as a buffer. Where say that in the medicine, while in the analytical chemistry also that the various buffers like ammonium hydroxide as well as the ammonium chloride that is to be used when we determine the basic radical from the third A group. Okay, समझ में आ रही है? So this is all about the buffer solution and the buffer action.